all I could hear was footsteps. पीछे मुड़ के होटल को देखो ना तो ऐसा लगता है भूत बंगला है. I swear to my mother, it's that horrific. The view, and then it suddenly stopped. I freaked the fuck out. What's up, idiots? This is the most peaceful part of my day. This is the best part of my day when I open my camera and I'm chilling with you guys. So today's video, I was about to film an Adriana Lima Victoria's Secret makeup video, but then the story that I'm about to share today happened to me almost a month ago and I'm still living in the same fucking apartment. तो मेरी तो फटके 4 64 68 हो जाएगी अगर मैं वापस दिल्ली जाके ये कहानी तुम्हें बताने लगूँ. तो I thought that I'd film this video पहले and then Adriana Lima वाली video I'll just film later. So let's get started, idiots. Like I've got I think 3 stories with me. This happened before we went on our Himachal trip, okay? मुझे ये बात बताना है कि ये तुम सब में से भी किसी के साथ होता है या फिर I am the only one. We love watching horror podcasts, okay? Real hit का के podcasts, we love it, we freaking love it. हाल हो गया था ना कि खाना मतलब वो excitement आ जाती थी कि खाना खाते ना my boyfriend and I we both are gonna watch this horror podcast. But धीरे-धीरे क्या होने लग गया ना कि धीरे-धीरे मुझे लगने लग गया ना कि क्योंकि वो real life stories हैं कि हम इतना ज़्यादा indulge होने लग गए ना उन stories में कि we started thinking about it a lot and it really affected us. It really affected me. One day, same thing happened. We were having a dinner and we were watching this podcast, okay? मैंने कुछ टोक दिया, ठीक है, कि इसको ये करने की क्या ज़रूरत थी. मैंने ना पॉडकास्ट देखते देखते कुछ टोका कि इसको ये करने की क्या ज़रूरत थी. दैट्स सो स्टूपिड. ऐसे करके मैंने कुछ बोला, कुछ मॉक किया. ओके, देन माय बॉयफ्रेंड ना इमीडिएटली ही टोल्ड मी कि तू ऐसे क्यों बोलती है, तुझे पता है ना ये रियल लाइफ स्टोरीज हैं तो तू क्यों बोलती है कि ऐसे क्यों किया वैसे क्यों किया. करने देना जो जहाँ पे हैं वो एनर्जीज हैं. लेट देम बी व्हाटएवर दे आर डूइंग. जस्ट लेट देम बी, जस्ट लेट देम डू. नॉट जस्ट लाइक मॉक देम और डू नॉट जस्ट लाइक इंटरप्ट. व्हाटएवर इट्स गोइंग ऑन. फेल्ट कि हाँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जो भी मैंने बोला है ना. उसने कहा चल ठीक है चल. मेरे बॉयफ्रेंड की फ्लाइट थी उसी दिन early in the morning, so he was getting ready and I couldn't sleep because he was about to leave and stuff. मतलब उसके जाने से 15 minutes पहले ना I went to the washroom to poop. Okay, I was pooping चैन से एकदम आराम से बैठ के I was pooping. It was 4:45 in the morning, something like that. फिर क्या हुआ ना कि उसकी कैब आ गई. जा रहा था तो he told me कि बू I'm leaving, okay, जल्दी से बाहर निकल के ना मेन डोर लॉक कर ले. I was like cool, see. ऐसा बहुत बार हुआ है कि he went out and then I was like हाँ चल ठीक है कुछ नहीं होगा. Apartment is like really safe. Everything is totally locked. Everyone is super nice, super chill. Everyone loves us. This thing never happened to me. Never ever fucking happened to me in my life. तो मैंने बोला कि हाँ तू जा, मैं गेट लगाती हूँ. And more than I'm scared of ghosts and spirits, I am scared of humans. Like गेट लॉक कर देना. उसके ये बोलने से 10 मिनट बाद ना मुझे ना ऐसा फील हुआ ना कि someone barged inside my apartment. Someone just opened my door क्योंकि ना मुझे आवाज़ आया कि दरवाजे को खुलने का मुझे आवाज़ आया. I heard the door crack. Someone just came inside my apartment. फिर ये तो footsteps okay होता नहीं कि धीरे धीरे कोई चल रहा है एकदम धीरे धीरे की मतलब आवाज़ ना हो. Someone is walking really slow, so I had to pause my reel. Okay, I had to really pause my reel and I had to like listen. What the heck is going on outside my washroom? Gibson, are you there? Gibson, तू है क्या? Gibson, तू है क्या? I was continuously like shouting. No response. I'm taking his name. All I could hear was footsteps, and then it suddenly stopped. I freaked the fuck out. I thought it was somebody. दरवाज़ा खुला था और कभी भी नहीं हुआ ऐसा कुछ, but आज हो गया. दरवाज़ा खुला था और I took a last. The first thing that I did was I locked myself from inside, okay, inside the washroom. I called my boyfriend, okay, and then I called him and I said, where are you? He said that I already left. I'm almost about to reach the airport. I was like, okay, did you close the main door? मतलब नीचे का जो दरवाज़ा है, did you close it? He said, yeah, I closed it. And I told him कि कोई था हमारे अपार्टमेंट के हमारे रूम के बाजू में कोई खड़ा था या फिर कोई तुझे देख रहा था. Did you see something suspicious or something? And he said, no, there was literally nobody. It was silent. It was literally silent there. And I said, okay, cool. But few seconds back, I heard footsteps of somebody. किसी ने हमारा दरवाज़ा खोला और फिर he slowly came into our apartment. I explained him everything. कि हवा से खुल गया होगा. Doesn't matter. It's okay. You come outside. You check the entire apartment. अलमारी वगैरह सब कुछ देख ले और सब कुछ चेक वेक करके फिर से दरवाज़ा अच्छे से बंद करके सो जाओ. कुछ नहीं होने वाला है ना. मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही हूँ. खुल नहीं रहा है दरवाज़ा मेरा और मेरा दरवाज़ा बहुत ही ज़्यादा लूज है. एकदम ही लूजेस्ट. मैं अंदर से देख रही हूँ ना कि बाहर से मुझे किसी ने लॉक कर दिया है. Someone has locked me from outside in my own apartment at 5 in the morning. And that shit is scary enough to leave that fucking place, okay? अब ना मैं फिर भी ना उसे खींचने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो खुल नहीं रही है और मुझे थोड़ा सा ना वो कुंडी होता है ना अंदर से ना मुझे थोड़ी सी ना वो कुंडी दिख रही है कि मुझे किसी ने बंद कर दिया है ना. I'm 100% श्योर कि मुझे किसी ने बंद कर दिया है. And I thank God that कि मेरे पास फ़ोन था
अदरवाइज़ मैं वो मेरा बॉयफ्रेंड दिन के 12 बजे वापस आने वाला था। मैं सुबह के 4 बजे से दिन के 12-1 बजे तक मैं वॉशरूम में अटकी हुई रहती अगर मेरे पास फ़ोन नहीं होता तो। जो भी अपना फ़ोन लेके हगने जाता है ना, किसी की बात मत सुनो कि नहीं तुम्हें फ़ोन नहीं ले जाना चाहिए या फिर ये या फिर वो। Do not listen to it. Honey, all fucking ways carry your motherfucking phone with you. मेरे दिमाग में तो भाई ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है कि मतलब भूत है, ये है, वो है, कुछ है, पैरानॉर्मल कुछ है। दिमाग में सिर्फ यही आ रहा है कि someone barged in, someone locked me from outside and I should lock myself probably from inside or else I am gone. Then he called my landlord. मेरे लैंडलॉर्ड को तो ये बिलीव नहीं हुआ पहली बात। फिर वो अंदर आया, वो बंदा बाहर से चिल्ला रहा है what the fuck, क्या है ये? He freaked out as well. I'll attach a picture over here. He clicked a picture, okay. Can you see, मतलब वो कुंडी थी, उस कुंडी को किसी ने पूरा बंद कर दिया था, पूरा। उसके बाद तो मेरी जो फटी हालत थी भाई, मैं निकलने के बाद मैं उस रूम में जा ही नहीं पा रही। मेरा सपोज ये रूम है और सीसीटीवी एकदम यहाँ है, तो दरवाज़ा किसी ने खोल के अगर कोई भी अंदर गया होगा, कुछ भी लेके अगर वो बाहर आया होगा तो फिर मुझे वो पता चल जाएगा। मेरा लैपटॉप सेम जगह पे रखा हुआ था, मेरे पास रिंग लाइट है, मेरी रिंग लाइट सेम जगह पे रखी हुई थी, एयरपॉड्स वैसे के वैसे ही पड़े हुए थे। तो मुझे लगा कि चोर अगर आया हुआ तो ये सारा सामान क्यों नहीं वो लेके गया, मुझे ये बताओ पहले। उसके बाद कम से कम मैं 2 घंटे ना बाहर ही थी रूम के, मैं अंदर ही नहीं गई। फिर जब रोशनी हुआ, सुबह हुआ, तो लैंडलॉर्ड आया नहीं, वाज लाइक इफ़ यू वांट टू चेक द सीसीटीवी फुटेज, अगर आप फुटेज चेक करके अगर आपको थोड़ी सी तसल्ली होगी, अगर आप अंदर जा पाओगे, आप बहुत देर से यहाँ पे खड़े हो। तो मैंने फुटेज चेक करी, गेस व्हाट बिच, फुटेज में कुछ भी नहीं था। टाइमिंग भी हम देख रहे थे क्योंकि जब सीसीटीवी का जो फुटेज आप देखोगे तो यहाँ पे टाइमिंग्स लिखे हुए रहते हैं ना, तो किसी ने अगर कट किया होगा ना कि शायद लैंडलॉर्ड ही बदमाश होगा तो उसने कट कर दिया हो। नथिंग वाज चॉप्ड, एवरीथिंग वाज लाइक दैट, एग्जैक्ट सेम थिंग, वैसे का वैसा ही था। वो पहले दिन के रिकॉर्डिंग्स हमने चेक किए, सारे के सारे वैसे ही सेम। उसमें हमें क्रॉप रिकॉर्डिंग्स दिखाए कि क्रॉप रिकॉर्डिंग्स कैसे दिखते हैं। नो फकिंग बडी एंटर्ड दैट रूम, नो वन एंटर्ड माई अपार्टमेंट, नो वन। अब कैसे हुआ, किसका पैर के आवाज़ थे, क्या हुआ, किसने मुझे बंद किया, आई हैव नो फकिंग क्लू, बट आई विल टेल यू हाउ आई गॉट रिड ऑफ माई फियर। ठीक है, कि मतलब कैसे मुझे डर लगना बंद हुआ। I'll just do my eyebrows and I'll continue with the rest of the story. एक आईब्रो अलग और दूसरा आईब्रो अलग होगा ही होगा, मतलब होना ही है उसे। इट्स सो अनोइंग। थोड़ी सी ताकत आई मेरे में से, मैंने बजरंग बाण चलाया लैपटॉप में, जो कि मुझे पता है कि नहीं चलाना चाहिए हमेशा, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उस टाइम। सैट एंड पीस, ठीक है, पीस में बैठ के ना आई सेट कि कुछ भी अगर है यहाँ पे भगवान करके, कुछ भी है, मैं कान पकड़ती हूँ, मैं नाक पकड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने गलती से भी तुम्हारे वर्ल्ड में किसी तरह से कुछ भी लाइन क्रॉस कर दिया हो और मैं कुछ भी मैंने किया हो, तो प्लीज़ forgive me. You're on your own, I'm on my own. You've got your own God, I've got my own God. प्लीज़ माफ़ कर दो अगर मैंने किसी तरह से भी गलती से भी किसी भी लाइन को मैंने क्रॉस किया हो। And I beg you to please leave my house. I beg you. I don't know what it was, guys. It could be anything. It could be a human. It could be something devil. It could be something demonish. I have no idea what the fuck it was. But after I said this, बहुत ही अजीब सा एक लाइटनेस सा छा गया रूम में, ठीक है, एंड एवरीथिंग फेल्ट नॉर्मल। मतलब मुझे ऐसा एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मेरे साथ इतना बड़ा एक हादसा हुआ है, और उसके बाद भी मैंने सोचा नहीं था कि मैं उस अपार्टमेंट में रह पाऊंगी, और मैं आज तक उस अपार्टमेंट में रह रही हूँ। एंड आई नेवर फेल समथिंग फिशी और बैड और एनीथिंग लाइक दैट, नेवर, उसके बाद से कभी भी नहीं। सो yeah, that is one incident that happened to me, और मेरी फट के 4 हो गई थी। Okay, story number 2 is when we recently went to Himachal Pradesh. तो story number 2 is शिमला की कहानी है ये, ठीक है। फ्रीकी वो तो मैंने फील किया था कि मुझे ना गूज़बम्स आ रहे थे उस जगह पे। It was our day 1 in शिमला, ठीक है। तो वी डिसाइडेड कि हमारा कॉमन फ्रेंड भी वहाँ पे मौजूद था, तो वी डिसाइडेड कि आज की रात हम वहीं पे गुलछते उड़ाते हैं उसके होटल में, दारू वारू पियेंगे, मस्त मज़े करेंगे। The moment we entered the hotel ना, it felt so fucking fishy, and it was all dark. बस 10 ही बज रहे थे, और मैं समझ रही हूँ कि शिमला छोटा जगह है तो वहाँ पे क्या होता है कि बंद हो जाता है सब कुछ बहुत ही जल्दी। लेकिन अब एक ना केयर टेकर था वहाँ पे। बस अब क्या होता था ना कि रूम में पानी खत्म हो जाती थी ना, तो पानी लाने के लिए ना हमें बाहर जाना पड़ता था पानी लेके आने के लिए। तो हम रूम में चिल विल कर रहे हैं, रूम में चिल करने के बाद ना पानी लाने के लिए हम जैसे ही बाहर गए ना, वो बंदा ना दरवाजे के सामने यूँ खड़ा था, यूँ खड़ा है यूँ। अब ना मैं ही जा रही थी पानी लाने को, यूँ खड़ा है, तो मैं तो फट गई। और वो बंदा छोटा सा था, वो कहता है कि प्लीज़ आप लोग ना शोर कर रहे हो, शोर मत करो, ऊपर वालों को ना वो तकलीफ होती है, ऐसे ही देयर टोन इज़ लाइक दैट, राइट। आई वाज लाइक ठीक है, तो आपने हमें उससे ऊपर फ्लोर में क्यों नहीं दे दिया? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ऊपर वाले फ्लोर में क्यों नहीं दे दिया? इस फ्लोर पे तो कोई भी नहीं है, हमें ऊपर फ्लोर में लेना था रूम। तो ही वाज लाइक कि ऊपर फ्लोर में आप नहीं रूम ले सकते, वहाँ जो रहते हैं उनको ना प्रॉब्लम होती है, ऊपर में जो भी रहते हैं ना वहाँ पे उनको अगर प्रॉब्लम होगी ना फिर आप लोग को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो क्या प्रॉब्लम खेल रहा है ये, जो कोई बात नहीं। तो माई फ्रेंड, लेट्स नेम हिम रिमित टोल्ड मी कि चलो कोई बात नहीं है, अंदर आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे विल मैनेज करके। वी वर हेला ड्रंक, ओके। तो वी डिसाइडेड कि हम बाहर चलते हैं, कुछ अगर अवेलेबल होगा खाने वाने का तो हम लेके आएंगे। उस टाइम बज रहे थे रात के 2-2:30 बज रहे होंगे रात के। तो शिमला में घर कैसे होते हैं कि सारे पहाड़ों के बीच बीच में ही घर होते हैं, घर के बीच से ही पेड़ पौधे निकल आते हैं। तो वैसा ही इस होटल में भी था कि सीढ़ी थी, सीढ़ी के जिस बाजू में एक बड़ा सा पेड़ निकल के जा रहा है फ्लोर को तोड़ते हुए। तो आई रिमेम्बर दैट एरिया वाज सुपर फ्रीकी, मतलब और पूरा पिच डार्क। मतलब कौन से होटल में इतना पिच डार्क अंधेरा रहता है, एकदम पिच डार्क, ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना दाएं कुछ, ना मैं कुछ। इट्स पिच fucking dark, you cannot even see your fucking hands, it's that dark the moment you open the door and you step out of the corridor to go outside, it's so fucking dark. अब ना my boyfriend and I felt something at the same fucking time. मेरे को ना goosebumps आ रहे हैं, he told me कि मेरे को ना goosebumps आ रहे हैं इस होटल में, weird कुछ है। I told him the exact same thing कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से ना कोई चल चल के आ रहा है और कुछ तो है। एंड हमारे साथ ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी थी हमारे रूम पे। वी लिटरली इग्नोर्ड, बल्कि इग्नोर भी किया और ये भी बोला कि भाई जो है अपने जगह पे है, ऐसी जगह पे होती है, हम टूरिस्ट हैं, ये उनका घर है, रहो भाई रहो, वी आर नो वन टू डिस्टर्ब यू, ऐसे बोल के हम बाहर निकल गए। अब बाहर भी जो निकले हैं ना, बाहर का माहौल भी हमें वैसा ही लग रहा है जिस होटल के जिस बाजू में ना, मतलब हम खड़े हैं ना यहाँ पे रोड के ऊपर हम खड़े हैं, होटल थोड़ा सा नीचे है, पीछे मुड़ के होटल को देखो ना तो ऐसा लगता है भूत बंगला है। आई स्वेयर टू माई मदर, इट्स दैट्स हॉरिफिक, द व्यू इट्स दैट्स हॉरिफिक। अब अंदर ना हम बहुत ही बकचोदी कर रहे थे पी के ना, एक झूला टाइप का लगा हुआ था वहाँ पे, तो हम पी के बहुत ही ज़्यादा बकचोदी कर रहे थे। सबसे ज़्यादा ना निम्रत कर रहा था, मतलब मैंने निम्रत नाम रखा था क्या उसका, कोई नहीं, निम्रत नाम बुला लेते हैं वैसे। सबसे ज़्यादा बकचोदी ना निम्रत कर रहा था कि अरे यू को वो का, क्योंकि मेरे को और मी एंड माई बॉयफ्रेंड नो की मतलब ज़्यादा बकवास नहीं करने का, किसी गलत चीज़ को लेके बकवास नहीं करने का, बाकी वट एवर बकचोदी यू वांट टू डू यू डू इट। सो फ्रीकी, इट्स मतलब वाइब ही गंदा है। मतलब वो 2-3 दिन से रह रहा था, उसे कुछ फील नहीं हुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ, पता नहीं कैसे नहीं हुआ, कभी इस चीज़ की बात भी नहीं की उसने। जैसे हम दोनों वहाँ पे गए ना, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट कि क्या है ये, इट्स एविडेंट कि इट्स सो फ्रीकिंग फ्रीकी, एविडेंट है, वो दिख रहा है कि कुछ फ्रीकी है। तेरा रूम भी नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम सेकंड फ्लोर में कर देते हो ना तो सेकंड फ्लोर में फिर थोड़ी सी लाइट जल रही होती है, लेकिन कभी भी वो सेकंड फ्लोर पे, कभी भी मैंने बात किया पहले भी शिफ्ट करने की मुझे व्यू के लिए कि सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर दो, तो वो हमेशा ही कहते हैं कि नहीं सेकंड फ्लोर वालों को ना तकलीफ होगी, दिक्कत होगी, तो वो कभी नहीं करते। हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया ना। निम्रत बॉट लाइक ऑलमोस्ट 15 पेयर्स ऑफ शूज़ पहनने के लिए, हर दिन अलग अलग पेयर ऑफ शूज़ ही बॉट। आई वाज लाइक हाँ कि तू क्या लेके आया इतने सारे शूज़ एंड एवरीथिंग वाज जॉर्डन एंड स्टफ लाइक दैट, कि इतने महंगे महंगे जूते तू क्यों लेके आया, इतने सारे जूते पहनने के लिए, पहनेगा तू? तो ही वाज लाइक कि हाँ यार मैं तो थोड़ा शौकीन। मैंने पूछा उससे कि तुझे डर वर नहीं लगता यहाँ पर, तुझे डर वर नहीं लगता? एंड मतलब मुझे कौन क्या कर लेगा, कार फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इमीडिएटली फेल कि भाई ऐसी बातें मत बोला कर, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो सुबह हुआ एंड देन निम्रत वाज टोटली गॉन, ही वाज आउट, लाइक आउट केस, गॉन केस। क्या किया, दरवाज़ा लॉक किया, मतलब ऐसे वाला दरवाज़ा था ना कि अंदर से मतलब खींचो तो वो बंद हो गया। हम बस बाहर ही निकल रहे थे, तब थोड़ी सी लाइट हो गई थी, तब दूसरा केयरटेकर आ गया था जब तक, क्योंकि सुबह हो गई थी। तो हमने उनसे पूछा कि भैया आप इसे ना शिफ्ट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि ये फ्लोर काफ़ी अजीब सा है, तो इसे ना आप सेकंड फ्लोर में शिफ्ट कर दो। और आप जो भी बोल रहे हो ना कि इनको इस गेस्ट को दिक्कत होगी, उस गेस्ट को दिक्कत होगी, आप उस गेस्ट से एक बार बात कर लो कि एक ही बंदा है यहाँ पे, और उसे ना एक बार बात करके शिफ्ट कर दो। तो दैट केयरटेकर वाज फ्रीक्ड आउट कि कौन बंदा है सेकंड फ्लोर पे, इस पूरे होटल में सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है इस पूरे होटल में। इस पूरे होटल में सिर्फ आप ही हो। उस बंदे की भी हालत उस टाइम खराब थी, तो हम क्या ही उसे उठाते, क्या ही बोलते। वी लेफ्ट उसी दिन, तो वी लेफ्ट फॉर कसौल। अब हम घूमने जाने के लिए बस ना निकल ही रहे थे ना कि निम्रत का फ़ोन आता है एंड ही सेड कि भाई आज तो बवाल ही हो गया रूम में, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, मेरी फटके 4 है और मैं अभी होटल छोड़ रहा हूँ जब भी मैं कॉल कर रहा हूँ। वी वर सुपर एक्साइटेड। ऐसे सिंग आ गया डेविल वाला हमारे सिर पे कि क्या हो गया, कहानी सुनने को मिलेगी अब। वो उठा, उसके रूम की हालत खराब थी, खराब। वाइन बॉटल में से ना इतना सा वाइन हमने छोड़ दिया था, इतना सा, ऑलमोस्ट इतना सा वाइन हमने छोड़ा हुआ था। पहली बात तो सारी वाइन खत्म है, वो देख के मेरी फट गई कि भाई दारू किसने पी ये बताओ। चलो ये भी हो सकता है कि तुम लोग गेट खोल के गए थे तो कोई अंदर से आके कोई केयरटेकर ने पी ली होगी, पॉसिबल। लेकिन जब मैं उठा मैं देख रहा हूँ कि मेरे रूम पूरा लॉक्ड है, ये गोदरेज वाली लॉक भी बंद है, ऊपर से वो लॉक भी बंद है, मतलब पूरा रूम बंद है। शूज़ जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात करी थी उस दिन, शूज़ तहस नहस है, लिटरली इधर से उधर पड़े हैं शूज़ मेरे, कोई कुछ बेड के पास, कुछ बाहर, कुछ यहाँ वहाँ ऐसे पड़े हैं मेरे शूज़, मतलब तहस नहस। किसी के तो पैर ही नहीं मिल रहे कि इतने गंदे तरीके से किसी ने फेंक रखा है शूज़। जिस चेयर पे प्राप्ति बैठी थी ना, क्योंकि जिस चेयर पे मैं बैठी हुई थी ना उसके ऊपर ना टाल्स वगैरह रखे हुए थे, तो ये सेट जिस चेयर में प्राप्ति बैठी हुई थी ना वो चेयर तो, और उसका वॉशरूम पता है कैसा था, ऐसा वॉशरूम नहीं होता है कि मतलब शार सेपरेट होता है तो ऐसे शीशे की बनी होती है, तो खोल के होटल्स में जैसे होता है नॉर्मली वैसा।
प्राप्ति का जो चेयर था शार के नीचे रखा हुआ था और शार का वाला दरवाज़ा पूरा बंद था। तो मैं उठा, मैं देखता हूँ एक चेयर गायब है, सारे जूते पलटे वलटे हैं, वाइन ख़त्म है, दरवाज़ा बंद पड़ा है। मैंने सोचा कुछ हुआ होगा रात को, मुझे याद नहीं है। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ अपने वॉशरूम का, मैं देखता हूँ प्राप्ति जिस चेयर में बैठी थी वो चेयर शार के नीचे रखी हुई है। एंड देन ही वाज लाइक रुक मैं फ़ोटो भेजता हूँ एंड वी वर लाइक फक नो, हम बाहर आए हुए हैं, बिल्कुल भी ये सब नेगेटिव एनर्जी हमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए भैया। तू अपना रूम छोड़, तू पता नहीं कैसे 3 दिन से उस रूम में रह रहा था। दैट रूम वाज fucking fishy bitch. It was fishy as fuck. कोई भी जाता तो उसे फील होता है कि ये फिशी था, तू पता नहीं कैसे रह रहा है और मत भेज हमें कोई भी फ़ोटो वोटो। एंड देन हमने बोला कि केयरटेकर से बात करी और उसने बोला कि सेकंड पूरे होटल में तू अकेले रहता है। और निम्रत को ये बात भी पता चली, जो होटल है होटल के जस्ट नीचे Graveyard है. Then after that she immediately left the hotel. होटल वालों को उसने बोला कि क्या है तुम लोग का ये सारी बातें कि कोई रह रहा है ऊपर, तुम लोग झूठ बोल रहे हो कि ऊपर कोई है जबकि पूरे होटल में कोई भी नहीं है, एटलीस्ट एक लाइट लगा दो। एंड ही लेफ्ट। हमारे साथ तो बाकी पूरे ट्रिप में कुछ भी नहीं हुआ, हमने बहुत न्यूमरस होटल्स चेंज किए बट टचवुड कुछ नहीं हुआ। बट दिस वाज द लिटिल story time. Try to ignore it as much as you can. Like, do not just like poke it, okay? Do not poke it. If it's not poking you, you do not poke it. Because they've got their own world and you've got your own world. And smart ass बनने के चक्कर में ना अपनी जान खा लेते हो तुम लोग। Such a fucking bad storyteller. मैं खुद भूल जाती हूँ कि मैं पता नहीं कहाँ थी। That was it for today's video. I hope you guys enjoyed it. It takes so much in me to do story times, guys. You better fucking subscribe. Expect this face to be on your fucking YouTube feed every 2 days, every freaking 2 days. I'll catch you in my next video where I will be coming up with in-depth makeup videos and all the inspired makeup videos that you guys have been wanting to see. अगर तुम्हारे साथ भी कभी भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो मेरे साथ शेयर करो नीचे कि हमारी साथ में फटे, अकेले किसी की नहीं फटनी चाहिए। योर स्टोरी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी सो ईगर टू नो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। एंड टिल देन यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लेट्स कैच अप, लेट्स बी besties, and I'll catch you in my next video. Bye bye.